वो बैठ के स्क्रिप्ट मेरे पोस्ट पे हाँ और मैंने आज भी लाइक आई वाज पुटिंग आउट अ कम्युनिटी पोस्ट समवन रोट इट्स एग्जैक्टली कि ही इज लिविंग अ ड्रीमी लाइफ। मैंने कहा भाई वो ड्रीमी लाइफ के पीछे बहुत बैकग्राउंड में काम जाता है। Got it. So what are the average earnings of a content creator like during that time when like you were just deciding to quit the job so that even people get to know about the transparency of the industry? Hi everyone, welcome to the series Conversation with Kushal once again. Today we have one person who has not only cleared her chartered accountancy examinations but is also inspiring all the CA students, and not only CA students, like all the students fraternity of India. So she is like one of the most popular YouTube creators, and she has also inspired me in order to just do more and give more in my life. So her name is Neha Datta. I am sure like she needs no introduction at all. So thank you so much, Neha, for accepting my invitation and coming on the show. It's an absolute pleasure to host you today. Thank you so much. Thank you so much, first of all, for a lovely introduction, and thank you so much for having me on channel. Although it's been 1.5 years I qualified, but यार मुझे इतना देर से क्यों बुलाया? पहले क्यों नहीं इनवाइट करा मुझे? एक्चुअली मैं सही समय का वेट कर रहा था, तो मुझे लगा कि अभी आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू इनवाइट यू ऑन द चैनल, बिकॉज पहले जब मैं करता तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स थे नहीं, तो आई वुड हैव फेस्ड अ रिजेक्शन, राइट? तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़े सब्सक्राइबर्स बना लेते और उसके बाद इनवाइट करते जहाँ पर चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर लोअर. Smart CA kind of answer. Nice. Yeah, exactly. But no, seriously, thanks a lot for coming up on the show. So we are going to discuss like your entire journey, which I know you've discussed a lot of times in your videos, etc. But we'll discuss some other parts of your journey, which will be inspiring to all the students, and even your transition from CA to content creation, your switch from job into entrepreneurship. So like it's going to be a fun, candid conversation. Absolutely. I'm super excited to get into this conversation. On that note, let's just begin. Oh my god, I think you're more excited than me. Absolutely. Awesome. So first things first, Neha, like if you can just tell everyone about your entire CA journey in terms of how was your entire CA journey, what were some of the challenges you faced and tackled, and like what were some of the learnings which you got from your entire CA journey? So first of all, my CA journey has been really roller coaster. I can say that. I got into CA in 2012 and completed it in 2021. 9 long years. And as you mentioned that I have already discussed my journey so many times. So now whenever someone asks my journey, I'm like, यार I'm done with my journey. मैंने बहुत बार बता दी है. But yeah, जब भी कुछ बताते हैं, जब भी journey share करते हैं, so it's always like a new learning for someone watching it for probably for the very first time. तो एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी अपनी जर्नी में वो था मेंटल हेल्थ इश्यूज. रियली वन फेलियर आफ्टर अनदर. तो दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम. इतना एक टाइम पर आई वॉज सो स्केर्ड टू प्रेस एंटर व्हेन इट कम्स टू चेकिंग योर रिजल्ट, बिकॉज एवरी टाइम यू प्रेस एंटर एंड सी दैट FAIL, that just make you so shattered. And but that journey taught me, first thing, as you mentioned, the learnings, the first thing is self acceptance, and I learned to own my failures. So what I did is, in the attempt I qualified immediately, that previous attempt of that attempt I took my failed mark sheet, screenshot of that, I put it out on LinkedIn. Everyone on LinkedIn was asking what was your result, how was your result, and I was so done with all of that कि मुझे लगा अभी मैं पब्लिकली डाल देती हूँ, ये है मेरा रिजल्ट, अब आप देख लो. एंड मैंने खुद के लिए एक नोट लिखा कि डियर नेहा, आई नो यू स्टडीड सो वेल बट यू जस्ट कुडंट क्लियर, आई एम स्टिल सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो श्योर दैट नेक्स्ट टाइम यू गोना एस इट. और मैंने खुद के लिए नोट लिखकर वो वहाँ पर शेयर कर दी. उसके बाद से पीपल स्टार्टेड शेयरिंग देयर फेल मार्कशीट ऑल्सो. सो मे बी मैंने अपना फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखा. दिस टॉट मैनी पीपल अ लेसन कि फेलियर बहुत नॉर्मल चीज़ है, इतना शैटर नहीं हुआ जाता है, और लेट्स ओन इट. सो नाउ आई ओन माई जर्नी प्राउडली. ठीक है, लग गए अटेम्प्ट, लग गए. यार हमारा इंटरव्यू अटेम्प्ट लगने के बाद भी तो क्या ही हो गया. No, I think I can relate to it very well, because social media pe usually people talk about their success stories, and I had like recently mentioned a post about this on LinkedIn that it's very difficult to see people talking about their fail stories. For example, like one of the posts which I had mentioned was about my rejection stories during my campus placements, where I was rejected by a lot of companies like Deutsche Bank, BCG, Mondelez, HUL, Bain, etc. And I just laid down a simple LinkedIn post stating that it's okay, like even if you're rejected doesn't mean it's the end of the world. So that was something which I wrote, and a lot of people could resonate to it, because a lot of people like get rejected in their interviews, right? And it's not the end of the world. अभी तो फिर भी थोड़ा लोग करने लग गए हैं, बट कुछ टाइम पहले तक people were not so open. They used to feel so ashamed कि मैं फेल हो गई.
But I'm glad to see on LinkedIn also that now people are pretty much comfortable in owning their failures कि हाँ हो गए तो ठीक है, we got some learnings out of it. That's such a great thing to see. राइट एवरीवन हैज लाइक सम और द अदर पॉइंट इन देयर लाइफ कि उनको लगता है कि हाँ यार ये टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ का. फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, तो मेरे लिए 16 जैन 2020 वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पर मुझे सीए का क्वालिफिकेशन मिला एंड माय लाइक लाइफ चेंज कंप्लीटली फ्रॉम अ सीए स्टूडेंट टू अ सीए मेंबर वेयर आई वाज लाइक गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हिच चेंज्ड यू एज अ पर्सन और मे बी व्हिच changed the perspective, like changed your perspective, the way you look towards life? तो मेरा तो आई ऑलवेज से कि द डे व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट वाज लाइक अ न्यू बर्थ. क्योंकि उससे Right. पहले तक आई माई सेल्फ वॉज अ बिट शैटर्ड पर्सन कि मैं तो फेलियर हूँ, आई एम सो डम, आई कैन डू थिंग्स इन लाइफ, इट्स बीन 9 लॉन्ग ईयर्स, आई हैवंट कंप्लीटेड अ डिग्री. और फिर थोड़ा सोसाइटल प्रेशर भी आता है, फैमिली प्रेशर भी आता है कि यू आर 26 व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड. तो वो सारे प्रेशर के साथ मैं जी रही थी उस मोमेंट तक. बट एज सुन एज आई क्वालिफाइड तो दैट वाज अ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वाइब, डिफरेंट फीलिंग. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था. और मुझे उससे पहले तक लगता था कि क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए थे तो मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं स्मार्ट टिप्स बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ. बट आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ बैक, रीजन बीइंग कि आई एम नॉट येट क्वालिफाइड. वाई समवन एल्स विल रिलाई ऑन माई स्ट्रैटेजीज. वो कहेगा कि यार खुद तो सीए बनी नहीं है, हमें क्या बता रही है. बट सीए की डिग्री मिली, उसके बाद मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया. लाइक विद इन अ वीक आई पुट आउट माई फर्स्ट वीडियो एंड माई चैनल लाइक जस्ट टूक ऑफ. हर दिन मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि क्या हो रहा है. तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट था. और वो लड़की जो सबसे ऐसे, मैं एमसीएस के बैच में हूँ ना, ऐसे एक पिलर होता था उसके पीछे बैठती थी कि मुझे टीचर पॉइंट आउट ना कर दे. सो फ्रॉम दैट नेहा टू टर्न आउट टू बी अ नेहा जो कैमरा पे इतने सारे लोगों से बात कर रही है. तो बहुत एक ट्रांजिशनल फेज था मेरी लाइफ का. तो अभी तो इट फील्स ग्रेट. No, I mean that's very commendable, and you know, like a transition from being a shy and an introvert kid to a very like extrovert and a very confident person. I think that transition is something which is commendable and which is going to inspire a lot of people. But just tell me one thing: from 2012 to 2021, when you say that okay, it took 9 years for you to clear your CA exams, but what kept you motivated or what kept you going? I have a lot of my friends who like give up after they fail for 2 or 3 attempts, or maybe you know like after they give their exams for 4 or 5 years. उसके बाद तो वो पूरा स्टैमिना भी नहीं बचता है पढ़ाई करने के लिए एंड दे जस्ट गिव अप. सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड क्या दिमाग में क्या माइंडसेट था, थॉट क्या आता था लाइक ये करना ही है मुझे? तो मेजरली 2 पॉइंट्स थे, आई विल बी रियली ऑनेस्ट. तो पहली चीज़ तो अभी रिसेंटली ना, जब मैंने लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई क्विट माय जॉब, तो लोगों ने नीचे ना कमेंट सेक्शन में लिखा कि हाँ द पीपल हु आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून तो वो तो ऐसा कर ही सकते हैं. ऐसा नहीं है. पीपल जस्ट प्रिज्यूम कि जो कोई हमें कैमरा पर दिख रहा है तो पक्का बहुत ही अच्छी फैमिली से आता होगा. दैट्स नॉट द, आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड, बट नॉट कि अगर मैं सीए बीच में छोड़ दूँ तो मुझे वापस से मैं बहुत सारे पैसे किसी और कोर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो आई डू नॉट कम फ्रॉम माई बैकग्राउंड की बीच में सीए छोड़ दी तो जाओ बेटा बहुत अच्छी जगह से एमबीए कर लो तुम्हारा कवर हो जाएगा. तो मैं नहीं आती थी उस बैकग्राउंड से. और मुझे ऑनेस्टली पता, अभी तो हमारे पास यूट्यूब के थ्रू लाइक यू ऑल्सो कीप ऑन मेंशनिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कोर्सेज. मुझे उस टाइम नहीं पता था कि अगर ये छोड़ा तो फिर क्या करूँगी, और जो भी करूँगी तो वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना. लाइक आई एम ऑलरेडी इन टू इट लाइक 3-4 ईयर्स. पीछे देखूँ तो मैं 3-4 साल में कहीं भी नहीं बढ़ी और फिर कुछ नया कोर्स शुरू करूँ. तो पहली तो यही चीज़ थी कि अनअवेयर थी. फिर दूसरा वापस से यार घर से पैसे मांगूंगी, फिर से इतने पैसे लगाओ किसी डिग्री में, आई कांट डू दैट. और तीसरी चीज़ कि अब जब आ गई हूँ तो इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि लेट्स कंप्लीट इट. तो ये था बस कि अगर एक बार मैंने गिव अप करना सीख लिया तो फिर मैं शायद आगे भी गिव अप ही करती जाऊँगी चीज़ों में. तो कब तक चलता रहेगा. तो गिव अप नहीं करना है. That's a very optimistic attitude which you had during your exam period. But again, like, how did you tackle the pressure from, let's say, your friends or your relatives? Because what I've realized is everyone likes to take credit for someone else's success, but no one wants to take credit, or no one wants to like, you know, blame themselves for like failure of some other person. तो अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो बहुत लोग पीछे आके बोलते हैं कि हाँ यार ये तो मेरी वजह से हुआ, मैंने तो बोला था ये हमेशा होगा ही. एग्जैक्टली एंड फेल अगर होते तो बोलते अरे यार ये तो सोशल मीडिया पे टाइम पास ही करता था, ये तो स्नैपचैट व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाता था, ये कैसे पास होने वाला था. हाउ डिड यू टैकल ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो ये बहुत ज़्यादा थी चीज़. और उसके बाद भी ना, एक तो आपके पास रिलेटिव का प्रेशर होता है क्योंकि बढ़ती उम्र, इंडियन सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपकी उम्र बढ़ रही है, 23-24 पार करते तो इट्स लाइक कि क्राइम है आपके लिए अनमैरिड होना. तो वैसा था. और कहते भी रहते थे लोग कि भाई शादी वादी कर लो, पढ़ाई में पैसे लगाए जा रही है और पास भी नहीं हो रही है तो पता नहीं कैसे पढ़ती है, हमारे बच्चे तो बीकॉम कर रहे हैं पास हो जाते हैं, एमकॉम करेगा, अरे आंटी. तो वो बहुत एक टाइम में प्रेशर. और उसके बाद साथ में कि जब आपके
7 के फ्रेंड्स सीए बन गए हैं और आप अभी भी वहीं हो। तो वो एक टाइम पर ना मैंने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था सब चीज़ से। मैं लिटरली द रूम आई एम सिटिंग इन राइट नाउ, अभी तो ये दिस रूम इज़ लाइक अ हैपनिंग प्लेस कि मैं अपने फेवरेट काम यहाँ से करती हूँ। पर एक टाइम पर दिस रूम वाज लाइक अ प्रिजन फॉर मी, कि मैं यहीं पर हूँ सिर्फ। तो मैं अपने रूम में ही रहती थी, मैंने फ़ोन बंद, नो सोशल मीडिया, जस्ट मी एंड माई बुक्स, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी किसी को शक्ल दिखा दूँ जाके कि मेरे इतनी बार मैं फेल हो चुकी हूँ। तो वो मेंटल ट्रॉमा बहुत था, और इसमें माइंडफुलनेस ने और मेडिटेशन ने और सेल्फ अवेयर होने ने मेरी हेल्प करी टू टैकल एंड डील विद ऑल ऑफ दैट। सो जो ये नई नेहा लोग दिखते हैं ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंट, ये उस बंद कमरे में बैठने की वजह से हुई है, तो काफ़ी समय तक बंद कमरे में थी। और कितने महीने के लिए मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया बंद कर दिया था? मोबाइल फ़ोन जब एग्ज़ाम्स आते थे ना तब तो मेरा बिल्कुल बंद, मतलब मैं रिचार्ज इंटेंशनली ना, मैं रिचार्ज भी नहीं करवाती थी अपने फ़ोन में, और वो एक रिचार्ज जब नहीं करवाते ना एक टाइम बाद आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाती है। सो आई वाज लाइक प्रीटी ओके विद दैट कि मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से, मुझे किसी का हाय हेलो नहीं सुनना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं 4-5 महीने तो बिल्कुल मेरा फ़ोन बंद था, और एग्ज़ाम से पहले तो कोई पॉइंट ही नहीं कि मैं ऑन कर लूँगी फ़ोन, ऐसा। Right. Or like what's your piece of advice or what's your take on this? Like the way Gen Zs are using social media these days, do you think it has become a major source of distraction for them, or do you think it's a very good tool in order to stay updated with what's happening in the economy? What's your take on like the entire social media shift which is happening in the Indian economy? कम्स टू एग्जाम स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पर ना फ़ोन बंद करना इज़ लाइक अ टॉप नॉच प्रोडक्टिविटी हैक आई से। क्योंकि क्या होता है, बहुत Yeah. बच्चे ना, हम ऐसा कहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, हमारे सामने फ़ोन रखा है पर हम चलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ेगा और आप अपने आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होगे थोड़ी देर में। और सोशल मीडिया को हमने ऐसा ईविल बना रखा है, इट्स नॉट ईविल, इट्स हाउ योर माइंड फंक्शंस। तो जब भी मैं किसी का पोस्ट देख रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ ना, साथ में मेरे बैक ऑफ द हेड एक मोनोलॉग चल रहा है कि इसकी लाइफ ना कितनी हैपनिंग है, ये तो कितने मज़े कर रहा है। सो फ्यू डेज बैक आई वॉज चेकिंग वन ऑफ योर मे बी लिंक्डइन पोस्ट या रील, एंड समवन कॉमेंटेड, लुक एट दिस गाय लिविंग अ वेरी ड्रीमी लाइफ, एंड आई वाज लाइक वो कंटेंट क्रिएशन भी पीस ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो जाता है। वो बैठ के स्क्रिप्ट बनाता होगा, रिकॉर्ड करता होगा। हाँ, और मैंने आज भी लाइक आई वाज पुटिंग आउट अ कम्युनिटी पोस्ट, समवन रोट इट्स एग्जैक्टली कि ही इज लिविंग अ ड्रीमी लाइफ। मैंने कहा भाई वो ड्रीमी लाइफ के पीछे बहुत बैकग्राउंड में काम जाता है। सो पीपल जस्ट जज इट, और उनके बैकग्राउंड में मोनोलॉग चल रहा है कि इसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, क्योंकि उनको बिहाइंड द सीन्स नहीं दिख रहा है। तो ना बहुत एक मेजर कंपैरिजन आता है कि मेरी लाइफ बेकार है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये कंपैरिजन की फीलिंग ना आपको पढ़ने नहीं देगी अब, कि उसकी लाइफ तो इतनी एज में वो इतना अर्न कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही आपके दिमाग में घुसा, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या था? फ़ोन बंद करते, मत देखते किसी को 3 महीने, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, इट जस्ट मी एंड माई बुक्स। तो प्लीज स्विच ऑफ योर फोन इफ इट्स बीइंग अ डिस्ट्रैक्शन। बाद में अपडेट हो जाना एग्जाम के, जैसे एग्जाम खत्म होंगे फिर वापस से अपडेट हो जाना, बट अभी एग्जाम के टाइम पर बंद रखो। राइट, या आई थिंक आई कम्प्लीटली रेजोनेट विद दैट। मैंने मतलब 4.5 महीने बंद कर दिया था मोबाइल फ़ोन कम्प्लीटली, और सोशल मीडिया तो ऑटोमेटिकली बंद ही हो गया था बिकॉज वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। व्हाट्सएप खोल दिया 10-15 मिनट चले जाते, स्नैपचैट खोल दिया, इंस्टाग्राम खोल दिया 10-15 मिनट चले जाते। तो आई थिंक इट वाज नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी इन ऑर्डर टू जस्ट यूज़ माई मोबाइल फ़ोन, तो इसलिए डैड के कबर्ड में जाके लॉक कर दिया था, एंड आई जस्ट ओपनड इट ऑन 19th of November जब मेरा लास्ट पेपर हुआ था। तो आई रिमेंबर लाइक इट वाज वेरी पीसफुल एक्चुअली, and the way I put it is like, you know, the lesser the number of people you talk to, the more peaceful your life becomes. ये तो मतलब मैंने realize कर दिया था। अभी भी ना समटाइम्स आई मिस दोज डेज कि कितना पीसफुल टाइम था ना, फोन बंद कर देती थी, आराम से डीप वर्क कर पाती थी उस टाइम पर। अभी तो ऐसा होता है ना, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आपको रहना पड़ता है, आप चेक करोगे अपने कमेंट्स भी, मेल्स भी, तो बहुत ऐसा यू आर हॉपिंग ऑन फ्रॉम डीप वर्क टू अगेन चेकिंग द नोटिफिकेशंस। तो अभी लगता है कि दैट वाज अ वे पीसफुल थिंग आई डिड विद माय लाइफ बैक देन। तो एवरीवन शुड गिव इट अ ट्राई। I agree. So how do you, let's say, deal with all this gratification, like वो instant gratification होता है कि अरे यार ये वीडियो पे या ये रील पे इतने व्यूज आए, इतने लाइक्स आए, इतने कमेंट्स आए? Do you try to, let's say, like are you distracted by that, by the fact that okay यार इस पे कम likes, कम views है, कम engagement है, और how do you tackle, how do you deal with this entire scenario? ओके, सो ऑनेस्टली क्या हुआ था, जब मैंने शुरू ही करा था ना, आई वाज सो एडिक्टेड टू चेकिंग द नंबर ऑफ लाइक्स, द कमेंट्स, कि मैं रील डाली, वीडियो डाली, उसको पोस्ट करने में तो बहुत थोड़ा टाइम गया, पर जो मैं बैठकर बार बार चेक कर रही हूँ कि किसी ने क्या कमेंट कहा। क्योंकि जब आपने नया नया शुरू करा है, वैलिडेशन, लाइक यू आर सीकिंग वैलिडेशन ऑफ कोर्स, कि सामने कोई क्या कह रहा है मेरे काम के लिए। तो शुरू शुरू में आई वॉज एंजॉइंग दैट थिंग एंड इट वॉज प्रिटी ओके।
पर एक टाइम बाद वो इतना ज़्यादा हो गया कि ऑल आई एम एडिक्टेड टू इज नंबर्स, मेरे लाइक्स कितने आ रहे हैं। और फिर एक तो मैं अपने लाइक्स चेक कर रही हूँ और साथ में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ जो सेम नीश का कोई कंटेंट बना रहा है कि उसके कितने पेस पे बढ़ रहे हैं, मेरे कितने पेस पे बढ़ रहे हैं। एंड वन डे आई वाज लाइक, नेहा ये क्या ही हो रहा है और इससे कुछ नहीं होगा, नोबडी इज गोइंग टू टेक देयर नंबर ऑफ फॉलोअर्स विद देम ऑन देयर डेथ बेड। तो मैंने ऐसा एक्सट्रीम सोच के देखा कि क्या ही हो जाएगा अगर मैं यही चेज करती रहूँ, तो क्या हो जाएगा इससे। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि अभी भी जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, ये भी लाइक बाय गॉड्स ग्रेस यू गॉट इट, सो लर्न टू बी ग्रेटफुल विद व्हाट यू हैव एंड नॉट टू चेज बिहाइंड नंबर्स। मैं ना एक क्रिएटर्स मीट में थी, मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं बड़ी खुश, गाजियाबाद में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ बस। और जब मैं क्रिएटर्स मीट में गई बैंगलोर, आई मेट अ गर्ल उसके 800K। और जब मैंने 800K सुना ना, मुझे अपना 80K इतना छोटा लग रहा था उस मोमेंट पे कि क्या किया है मैंने अभी तक। बट घर आके फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही, अपनी पढ़ाई नहीं हो, अपना काम जैसे अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी पहले कंपैरिजन में, ऐसी वीडियो नहीं बन पा रही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, थैंक यू जितना मिला है, आगे का काम करते हैं। तो अभी फिर अगेन माइंडफुलनेस हेल्प मी टू गेट बैक ऑन ट्रैक। So I think you have repeatedly used the terms mindfulness, meditation, and also let's talk something about that as well. So what is the importance or role of meditation in your life? How do you practice it? And how can people like me who, let's say, like who are not very expert or very good at meditation, we can also start meditating on a day-to-day basis? Or how can someone who has no knowledge about meditation, like he doesn't even do a single minute meditation during the day, how can they start? Okay, so let's do a quick thing. First, we'll take a deep breath, one deep breath. अभी? हाँ अभी ही करना है, मैंने भी करा, अभी करना है। Okay. Take one deep breath. Exhale. One more deep breath. Inhale. Exhale. And one more. Exhale completely. How did you felt, Kushal? मेरे को तो ये फील हुआ कि लोग जो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, या तो वो क्या कर रहे होंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे। नहीं, तो जो देख रहे हैं उनको भी हमारे साथ करना है, तभी they will be ओह, able to अच्छा। understand what was it. Yeah. So when we do Yeah. this deep breathing, अगर किसी को कोई क्लू नहीं है कि what meditation, mindfulness is, और कोई ऐसा randomly उनको ट्राई करना है, so we can do the deep breathing thing सबसे पहले। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो थॉट्स जो चल रही होती है ना एक्स्ट्रा कचर 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 कचर, वो दे स्टार्ट टू स्लो डाउन अ बिट, और वो हेल्प करता है। अब क्योंकि अब स्लो डाउन हो गई तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्रिप नहीं कर रही हूँ, कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, चुपचाप काम कर पाऊंगी अपना। तो दिस थिंग रियली हेल्प। और सेकेंड चीज़ माइंडफुलनेस में और क्या चीज़, कि हमें लगता है कि बच्चे ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम टाइम पर कैसे फोकस्ड रहें, और जबकि वो पूरा टाइम उससे पहले अनफोकस्ड रहना प्रैक्टिस कर रहे थे, डूइंग so many things at a time. Start taking one moment at a time या one thing at a time. हमें क्या लगता है सारी चीज़ें एक साथ कर ले। अगर अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और साथ साथ आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हो या मैं अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ, क्या हम कन्वर्सेशन में रह पाएंगे? मोमेंटम ही टूट जाएगा ना कन्वर्सेशन का। तो स्टार्ट टेकिंग वन मोमेंट एट अ टाइम, कि इस टाइम हम जहाँ पर हैं उसी मोमेंट में रहते हैं, पास्ट का नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोच रहे, वी आर हेयर इन द कन्वर्सेशन। दैट्स व्हाट माइंडफुलनेस का बेसिक लाइक सिंपलेस्ट वर्जन इज। How do you, let's say, have that kind of a mindset where there are a lot of random thoughts which are revolving around your mind and you're not able to focus? How do you remove all those negative thoughts and just maybe not think about anything? Like every morning I try to just not think about anything, but kuch na kuch business related aa jate hain thoughts. How do you remove them and how do you just have a very peaceful blank mind? I pen down. तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें क्या लगता है, बच्चों को भी क्या लगता है ना, कि टू डू लिस्ट भी सारी दिमाग में रख लेते हैं। आई वॉज ट्राइंग इट फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ माई टाइम। मैं टू डू लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट से रेजोनेट नहीं करती थी, तो मेरे को सारा सब कुछ दिमाग में रख लूँगी मैं। पर वो क्या होता है, इतना कुछ दिमाग में भर के रखोगे तो वो जैसे सुबह उठोगे ना, तो वो दिमाग में चलता रहेगा कि अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। लाइक इट्स बीन अ वीक आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। मैंने कॉन्शियस एफर्ट करा कि मैं एक लिस्ट बनाने लगी एक रात पहले ही, कि मुझे सुबह ये करना है, या जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं उसको भी जर्नल करना स्टार्ट करा। तो अब क्या है, जो भी यहाँ चल रहा था वो पेपर पेन पर है, मतलब पेपर पे उतर गया है वो, तो यहाँ से वेंट आउट हो गया है। तो दिस इज़ व्हाट रियली हेल्प। तो जर्नलिंग अपनी थॉट्स को भी इन जनरल, और जो काम है, पेंडिंग टास्क है, उसको भी पेपर पे उतारो, तो यहाँ से खाली हो जाएगा वो।
So my mom and sister, they are very big fan of spirituality, meditation, and they have this thank you gratitude book which they write at the end of the day. सोने से पहले I also every have night, that. like they are just, yeah, so they keep writing कि जो भी अच्छा हुआ दिन में, thank you God for this, and like जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई उसके लिए thank करते हैं. So it feels really good from inside, and I think even I should start that. उससे at least I ऐसे read one of your LinkedIn अच्छा तो posts भी होगा. regarding that, where you wrote कि मम्मा कुछ classes लेती है ना affirmations के Correct. ऊपर. She Correct. used to teach Yeah. the affirmation to the people. So I also Yeah. do that. So affirmations और gratitude का concept ये है कि जब मैं thank you कह रही हूँ किसी चीज़ के लिए, कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक लाइन बोली थी कि thank you मुझे जितने भी subscribers मिले हैं. So when I say thank you for my existing numbers of subscribers, at that time I'm not worrying about कि मेरे आगे कितने होंगे, बाकियों के कितने हैं, क्योंकि I'm just content कि यार जो मिला है ठीक मिला है, अच्छा मिला है अभी तक. So I'm just being grateful for what I have. तो ये gratitude का concept है, और एक affirmations की not worrying about क्या होगा, and just saying जो होगा बढ़िया हो जाएगा, देख लेंगे. This attitude Right. helped me to clear exam eventually कि जो होगा देख लेंगे हम. Correct. At least after talking to you, I realized, or maybe I got to know that you read almost all my LinkedIn posts because 3-4 बार LinkedIn post का बात हुआ है. So I'm glad that There are some few like my LinkedIn creators posts to are whom I being read by follow, but someone. there are few creators to whom I follow, पर जिनको मैं follow करती हूँ उनको I religiously follow, like I genuinely like their piece of Wow. content. Oh wow, that's very kind of you, and you have been like one of the inspirations for my LinkedIn posts also. तो जो भी motivation मिलता है तो like either from your videos or from your Instagram reels, कहीं ना कहीं से वो मिल जाता है motivation to write my LinkedIn posts. So like let's talk about your like PwC journey also. You worked at PwC. How many months did you work there? 3 months. Okay, so what did you work? 3 महीने में मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ होगा actually, but हाँ, क्या 3 क्या महीने काम था? एक्चुअली मैंने दिसंबर मिड में ज्वाइन करा था, तो उनका जनवरी टू मार्च बिजी सीजन होता है, बट क्योंकि मैंने दिसंबर में ही ज्वाइन करा है, फिर बीच में विंटर वेकेशन होता है उनका दिसंबर एंड से लेकर थोड़ा जनवरी के फर्स्ट तक, तो कुछ टाइम उसमें चला गया. देन वी यूज्ड टू हैव आवर ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशंस, इंडक्शंस, वो कुछ टाइम उसमें चला गया. और फिर उसके बाद मेरे लाइक 1 मंथ आई वर्कड थोड़ा सा, उससे पहले फिर 31 मार्च है. So तो 30 दिन नोटिस पीरियड. what profile? What profile were you there in? I was an audit profile. I was working with Canadian Okay. clients. So what made you switch from PwC to let's say like entrepreneurship in just 3 months span of time? So it was like mid Feb. I was crying at 2 a.m. at night, thinking what I'm doing with my life. Like throughout, like it 9 years, for 9 years, I was doing something which I wasn't passionate about. So I wasn't passionate about numbers. That's why I got into CA. ऐसा नहीं था. और मैं अपने दोस्तों को देखकर आ गई थी उसमें, पर आ गई थी तो फिर मैंने कंप्लीट भी करा है. देन आई थॉट ऐसा कब तक चलता रहेगा, मतलब कितनी लाइफ में ऐसा करूँगी कि जो मुझे नहीं पसंद वो भी मैं करे जा रही हूँ. अपने लिए भी तो कुछ करना है ना. सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई विल गिव माई सेल्फ 6 months. 6 महीने में कंटेंट क्रिएशन कैसा चलता है. अगर नहीं चला तो आई लाइक जो फाइनल कॉल होता है जब आपकी मैनेजर आपको कन्विंस करते हैं या HR कन्विंस करते हैं कि देख लो, रुक जाओ, अभी कुछ करना है, चेंज तो कर देते हैं. उस कॉल में मैं अपनी मैनेजर से पूछ के आई थी कि देखो अगर कुछ नहीं चला ना तो मैं वापस आ सकती हूँ क्या, कितने टाइम में वापस आ सकती हूँ. उन्होंने कहा वापस आ जाना, कोई बात नहीं. Wow. And Thank you. and like how much like how did you take this decision? Like were you making more in the content as compared to the job, or like how was the entire thing over तो मैं in that बिजी time? सीजन में थी, काम तो किया है मैंने उस टाइम पर भी, क्योंकि ऑडिट प्रोफाइल थी, काम होता है क्लाइंट्स का, तो मैं काम करती थी. जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, आई यूज्ड टू गो टू माय टेरेस, रिकॉर्ड अ वीडियो, कम बैक. अपने मैनेजर, मैं अपना काम करके जाती थी, जल्दी से काम कर देती थी, पर मैं मैनेजर को बताती नहीं थी कि मेरा काम हो गया, वरना और काम मिल जाएगा. मैं काम करके टेरेस पे जाती थी, यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियो, कम बैक, डू माय स्टफ, और फिर जैसे ही मैंने लॉग ऑफ करा या बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो उसको एडिट करके पोस्ट कर देती थी. दैट्स हाउ आई केप्ट ऑन डूइंग फॉर लाइक 3 months. ऐसा चलता रहा जनवरी से मार्च तक, पर उसके बाद मुझे लगा ऐसा Got और नहीं चल सकता है, सो लेट्स क्विट इट. वो बहुत ज्यादा हो रहा था. Got it. So what are the average earnings of a content creator like during that time when like you're just deciding to quit the job so that even people get to know about the transparency of the industry? तो जब मैंने स्टार्ट ही करा था तब अ ब्रांड रीच्ड आउट टू मी. एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने जो मुझे ऑफर किया, क्योंकि पहला मेरा ब्रांड का था और चैनल पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, नियरली 10-8-9 हजार कुछ होंगे. सो ब्रांड पिच्ड मी लाइक 5,000 रुपए, 4,000 रुपए. हाँ यार, लाइक 3-4,000 रुपीज. उस टाइम तो यार इट वाज अ बिग डील, क्योंकि हम तो आर्टिकलशिप वाले फेज से आ रहे थे कि पूरा महीना
महीना काम करके इतना हम अर्न करते हैं और एक वीडियो का अर्न करते हैं, दैट वाज प्रीटी गुड बैक देन। बट अभी इवेंचुअली लाइक इट्स बीन अ ईयर इनटू इट, 1.5 इयर्स इनटू इट, तो अभी वो इंक्रीज हो गया है थोड़ा राइट। ज्यादा। कितना ज्यादा लोगों को बता दो ना। ओके तो सबको वही जानना है। हाँ मतलब उसका हो गया है 8-9 टाइम्स। Oh wow. So 8, 9, it's like 45,000. So I'll just tell for everyone's benefit also. Like usually मैंने जितना notice किया है, it's like कि on an average YouTube पे जितने views मिलते हैं उसका into 2 or into 3 per view you can charge. So for example, if you're getting let's say 20,000 views on an average on your YouTube videos, you can charge around 40 to 60,000 rupees for an integrated video. दिस And इज the व्हाट यू same, कैन पिच, उसके बाद नेगोशिएशन होगा। हाँ करेक्ट, आई एग्री, या नेगोशिएशन वगैरह वो सब होता है। एंड देन इंस्टाग्राम पे इट्स द सेम इज ₹1 एंड लिंक्डइन पे द सेम इज ₹0.5, एटलीस्ट एज फार एज माय एक्सपीरियंस हैज बीन कंसर्न्ड। राइट, So लिंक्डइन पे। this is the rate which is going on just for everyone's benefit. So what do you think worked out really well for you on YouTube and like you thought कि हाँ अभी सही चल रहा है, अभी इस पे ही फोकस करते हो? What are some of the things which you think worked out really well? तो मुझसे ये सवाल ना काफ़ी बार पूछा जाता है कि वायरल कैसे होते हैं यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं। तो मैंने इतना ना कभी स्ट्रैटेजाइज करा नहीं। जो एक चीज़ मुझे लगती है ना मेरे फेवर में जो बहुत ज़्यादा वर्क करी है, वो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग, बीइंग वल्नरेबल, पुटिंग योर रियल सेल्फ आउट। आई वॉज लिट व्हेन आई वॉज टेलिंग माई जर्नी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, आई वॉज क्राइंग। तो मैंने 25 मिनट का लाइक 20 मिनट्स का मैंने बता दिया था ना, मैंने जीवन में पहली बार मैं खुद के फेलियर्स को कन्फेस कर रही थी कैमरा के सामने, और आई वाज लाइक सो ओवरवेल्म्ड बाय इट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। सो दैट, और मैंने सोचा नहीं कि मैं पार्ट ट्रिम कर दूं क्या। दैट वर माई रियल इमोशंस। तो मैंने वो ओन करने अपने इमोशंस सीखे। सो आई वॉज जस्ट बीइंग वल्नरेबल। तो मैं कभी किसी चीज़ में फेल होती हूँ, कुछ वर्कआउट नहीं करता, तो मैं सारी चीज़ें ना आई एम बीइंग वेरी वल्नरेबल। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी, लिंक्डइन पर भी मैं सच लिखती हूँ बिल्कुल, और यूट्यूब पर भी ऐसा ही रहा है। तो दैट रियली हेल्प। दूसरी चीज़, बीइंग ऑथेंटिक। जो अगर जैसे मेरे पास कोई ब्रांड रीच आउट करता है, सो देयर इज अ ब्रांड दैट रीच्ड आउट टू मी, इट्स लाइक 4-5 मंथ्स बैक, तब मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो कोई बाहर का ब्रांड था, गेमिंग ब्रांड, वो थोड़ा वैसा नहीं होता, सट्टा टाइप ब्रांड है ना, दैट ब्रांड रीच्ड आउट टू मी। और तब मैं जॉब कर रही थी, हाँ, लास्ट ईयर। तो मेरी मंथली सैलरी इतनी नहीं थी। द ब्रांड वॉज ऑफरिंग मी $2,000। Oh, दैट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। पर मैंने yeah, ब्रांड का पेज चेक करा, मुझे लगा कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई विल पर्सनली डू, सो आई कैन नॉट पुट इट आउट टू माई पीपल ऑल्सो। तो मैं बताऊंगी नहीं ना उनको वो। तो मैंने ये उस टाइम पर, यार वो बहुत बड़ी बात थी, अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, $2,000। पर मैंने स्टिल आई चूज माई ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी फर्स्ट, और मनी सेकेंड चीज। तो एक ये वाला एटीट्यूड ना, wow, मैंने बहुत सारे ब्रांड को ऑनेस्टली, मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, पर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मना करा है कि मैं नहीं करूँगी ये चीज़, क्योंकि right, मैं पर्सनली नहीं कर रही, तो मैं किसी को बोलूँगी भी नहीं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ऑनेस्ट होना ना थोड़ा मुझे हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक्चुअली। तो वही बच्चे कनेक्ट right, करते हैं, दिल से बोलोगे बात तो बच्चे कनेक्ट करेंगे ना, उनके दिल तक पहुँचेगी। दैट इज़ रियली हेल्प मी correct. अब तक। Right. Yeah, I think the brand which you've built, at least people in the industry talk about you as a creator who's very genuine and very authentic, and it is evident even after talking to you. Just let's discuss something on the project side. What are like some of the current projects you're working on apart from the social media game which you're playing, scaling your LinkedIn, Instagram, and YouTube? Apart from that, what are like some of the other projects which you're working on? Okay, so I was associated, like I'm still doing few sessions with them. So I was associated with the EdTech platform. So वहाँ पर कुछ strategies के sessions या special classes I used to take. So one thing that, and apart from that मैं अपनी workshops conduct करती हूँ, जहाँ पर mindfulness, पहले मैं one-on-one mentoring भी किया करती थी, but वो time allow नहीं करता है, like it's too much time. तो अभी मैं 1-to-many कोचिंग होती है, 7 दिन का वर्कशॉप, इट्स लाइक 21 आवर्स। तो वहाँ पर पता है, इतना ऐसा पर्सनल मैं रो रही थी अभी लास्ट वर्कशॉप जब करी थी। तो कोई 15 साल से कोई ऐसा सुसाइडल थॉट के साथ, देयर वाज अ गर्ल हु वाज लिविंग, बहुत डिप्रेशन में थी, शी वाज ऑन मेडिकेशन। शी डिड माई वर्कशॉप दैट माइंडफुलनेस, फॉरगिवनेस, सारी चीज़ें। ऑन डे 7 शी वाज लाइक, फाइनली मैं सो पाई बहुत टाइम, बहुत सालों बाद, बिना दवाइयों के। आई वाज फीलिंग ग्रेट Oh आफ्टर दैट। wow! तो ये अभी मुझे बहुत ऐसा अकम्पलिशमेंट जैसी चीज़ लगती है कि मैं ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। तो अपने जो भी चल रहा है उसके अलावा मेरा इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है कि मैं वर्कशॉप्स करती हूँ अभी, एंड आई ट्राई टू डू दैट। Very nice. अभी मैंने ई बुक भी लिखी थी कोई, वो दैट वाज अ फ्री ई बुक, तो बच्चों को दी थी। वो चीज़ मुझे अच्छी लगती Oh है कि मैं wow! कर पा रही हूँ। So how can people register for this workshop?
वो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर देती हूँ जब भी वर्कशॉप आती है। Got अभी it. मैंने लास्ट करी थी, इट वाज इन फरवरी, अभी अप्रैल में आएगी। Got सो आई विल कीप पीपल इन्फॉर्म्ड थ्रू माय कम्युनिटी पोस्ट, इंस्टाग्राम सबसे। Got it, got it. Very nice. I think this is a very great initiative which you've taken of giving back to the society. But is there any way the CA studies or CA का curriculum और जो पूरा 9 साल का journey था, is that helping you today in your day-to-day routine? दैट्स एब्सोल्युटली हेल्पिंग। तो अभी अगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं पीछे देखूँ कि मैं रिग्रेट करूँ किसी चीज़ पे, क्योंकि जो नेहा अभी इस टाइम कैमरा के सामने बैठी है ना, मैं बहुत डरती थी पहले। और मैं ऐसे रिस्क लेने से डरती थी, किसी से बात करने से डरती थी, और मुझे अपने किसी डिसीजन पे कभी विश्वास नहीं होता था कि कर लूँ सही है। कि मैं आई वॉज दैट पर्सन जो सबसे एडवाइस नहीं लेते कि करें क्या, ये ठीक है क्या, ठीक है क्या। नाउ आई एम लाइक कि आई नो वेयर आई एम गोइंग, लाइक आई नो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, आई कैन डू इट। पीपल आस्क मी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो बार बार गिर गिर के जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो एंड देन स्टिल यू बाउंस बैक, तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया है। सो हु आई एम टुडे आई ओ टू दैट failures I faced in that 9 years long journey. I'm grateful. Wow. Very inspiring. So let's take the last question in the interest of time and in the interest of like just giving justice to your time as well. So this is a tricky question which I asked to all my guests towards the end. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Neha, what is that one question which you would like to ask Neha at the end of the interview? Oh, ये काफी tricky question था। Yeah. मेरे को कुछ क्लिक ही नहीं करा, जबकि मैं इतनी इम्प्रॉम्प्टू इंसान हूँ, मैं ऐसे तुरंत जवाब देती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं Just हार a गई। white question. नेहा 0, कुशल 1। No, I mean I'm not playing a game जहाँ पे मेरे को जीतना है और तेरे को हराना है. But more on the lines that I wanted to know what would you like to ask yourself? हाँ, मैं खुद से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जब हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी ग्रो करता है ना, तो हम नंबर से अटैच तो होते हैं यार। ये अभी ना चीज़ें हैं, अभी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। सो येस्टरडे ओनली आई वाज थिंकिंग दिस कि जस्ट इन केस ये सब कुछ जीरो हो जाए, अगर जीरो हो गया, मतलब कोई नहीं जानते और सब जीरो हो गया, हाउ आई विल रिएक्ट टू इट। तो आई वांटेड टू आस्क मी दिस कि अगर नेहा सब कुछ चला जाए अभी जितना 1 साल में मिला है, तो क्या उसके बाद। Right. So Neha, just last question from my side. अगर सब कुछ चला गया पिछले 1 साल में तो क्या how will you react? ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा लगेगा कि क्या यार सब कुछ चला गया, बुरा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। मे बी लाइक प्रोबेबली आई विल वेस्ट या इन्वेस्ट 3-4 डेज इन ओनिंग दैट इमोशन कि क्या हुआ, या शायद 1 हफ्ता 15 दिन लगाऊँ मैं। पर फिर उसके बाद मैं सोचूंगी अभी तो चला गया ना, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, अब जीरो हो गया, अब इससे ज़्यादा इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो अब देखते हैं अब क्या करना है। तो आई एम ऑलवेज दैट कि लोग ना अनसर्टेनिटी को ऐसे देखते हैं कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है ना, कल पता नहीं क्या होगा, कल मैं इतना कमाऊंगी क्या। आई एम ऑलवेज लाइक कि वाओ लाइफ इज अनसर्टेन, क्या पता कल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि अभी 1 लाख गए हैं, तो क्या पता कल को ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि 1 मिलियन हो जाए सीधा। सो आई हैव दैट थॉट प्रोसेस। Wow. वेरी नाइस. आई थिंक अगर ये कॉन्वर्जेशन में शायद पहले कर देता तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 से शायद 1 ही आ जाता, इतना मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल जाता कि मैं 24 घंटे ही पढ़ाई कर लेता. बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस. And keep guiding, keep inspiring, keep mentoring all the students who are suffering from mental health problems in their lives. I think that's one of the major problems of India, where people are suffering a lot from mental health, and they need some people like you in order to help them from these problems. So thank you so much, Neha, once again. I hope I could do justice to your time, and thanks a lot. Had an amazing time. Thank you so much. And one thing in the last I want to say to all the viewers who are watching it कि ये जो फेलियर वाला बहुत शैटर्ड हो जाते हैं लोग, तो कोई भी डिग्री की ना फेलियर पास उसको अपनी पर्सनल वर्थ से अटैच मत करो, ये सब आता जाता रहता है। आप प्रो हो, बढ़िया हो, हीरो हो, काम करते रहो अपना, है सब शैटर्ड होने की बात नहीं, इट्स जस्ट अ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। Thanks, Neha. Thank you so much.